the geography part of your social science book, and today we are going to start chapter number 3, drainage. The term drainage describes the river system of an area. Small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drain into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. A closer observation in a map will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basins, such as upland is known as water divide. So children, ये जो टर्म है ड्रेनेज, ये किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को एक्सप्लेन करता है. किसी भी एरिया का जब सारा पानी, चाहे वो नालों के द्वारा हो, चाहे वो और किसी तरीके से हो, जाकर के जब एक स्थान पर मिलकर नदियों के थ्रू वो नदियों तक पहुंच जाता है, रिवर तक पहुंच जाता है, तो इस सिस्टम को ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. और यदि कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर माउंटेन या अपलैंड कोई ऊंचा एरिया आ जाता है, तो वो टू ड्रेनेज बेसिन्स बना देता है. वो टू ड्रेनेज बेसिन है तो उनको सेपरेट कर देता है. जैसे कि 3.1 में आप देख रहे हैं वाटर डिवाइड हो रहा है. ये स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी में, ये एक अपलैंड है और इसके कारण जो वाटर है ये डिवाइड हो गया है. इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो अमेजन रिवर है. यू हैव टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया. Children, you have to read the chapter deeply and word to word. I will give you only summary and important points. So, drainage system in India. The Indian rivers are divided into two major groups. First, the Himalayan rivers and the peninsular rivers. The Himalayan and the peninsular rivers are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers are perennial. It means that they have water throughout the year. These rivers receive water from rain as well. इंडियन रिवर्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. पहला तो है जियोग्राफिकल फीचर्स के कारण, पहला तो है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स. अब जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेनिनसुलर रिवर्स से जियोग्राफिक रीजन के अलावा और भी बहुत सारे वेज हैं जिनके वजह से वो डिफरेंट है. तो पहला तो ये है कि वो पूरे साल उनमें वाटर रहता है, क्योंकि वो सिर्फ रेन से तो पानी लेती ही है, जब बारिश होती है उससे तो उन्हें वाटर मिलता ही है. बट व्हेन द स्नो मेल्टेड फ्रॉम द लोफी माउंटेन्स, दैट these rivers are also filled with water. जब स्नो पिघलता है हिमालय रीजन से तो वो भी इन नदियों में पानी के रूप में बहता है, इसलिए ये पूरे साल इनमें पानी रहता है. टू मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, वो हैं इंडस और ब्रह्मपुत्र, जो कि माउंटेन रेंजेस के नॉर्थ से ओरिजिनेट हुई हैं. They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of silt and sand in the middle and the lower courses. These rivers form meanders, oxbow lakes and many other depositional features in their flood plains. अब ये जो रिवर्स हैं अपने साथ बहते हुए बहुत सारे सिल्ट और सैंड लेकर के आती हैं, एंड अपर कोर्स, लोअर कोर्स एंड मिडिल कोर्स में ये मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स और मैनी डिपोजिशनल फीचर्स ये बनाती हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर upper course, here is the sources of water on the top, then upper course, it is water is flowing from here, then middle course, here is meander and oxbow lake, and lower course and now delta. तो इस तरह से डेल्टा, मेंडर, ऑक्सबो लेक ये सारा बनाते हुए ये रिवर्स बहती हैं. नाउ पेनिनसुलर rivers. A large number of the peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. During the dry season, even the large rivers have reduced flow of water in their
channels. The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts, however. Some of them originate in the central highlands and flow towards the west. So here is one question given, identify two such large rivers. So you have to do this. You have to give the answer. अब जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो बारिश पर डिपेंड करती हैं. जिस तरह से बारिश होगी, जब बारिश होती है तब उनमें पानी आता है, और गर्मी के समय में, ड्राई सीजन के समय में ये रिवर्स जो है इनमें से पानी बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है. पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो शॉर्टर होती जाती हैं धीरे धीरे, और इसके बाद जो उनका हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में ये शैलोवर भी, मतलब स्लो भी हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे शॉर्ट भी हो जाती हैं. इनमें से कुछ जो है वो सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट की तरफ बहती हैं. आपको इस तरह की 2 रिवर्स के नाम लिखने हैं जो कि हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हों और वेस्ट की तरफ बह रही हों. सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड, जो सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट हो रही हों और वेस्ट की तरफ बह रही हों, ऐसी रिवर्स के नाम आपको लिखना है. Now the Himalayan rivers. The major Himalayan rivers are the Indus, Ganga and Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries may be called a river system. हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदियों में इंडस है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हैं और ये बहुत लंबी हैं. इसके साथ साथ इनको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, इनकी सहायक नदियां इन्हें ज्वाइन करती हैं, और इन नदियों को रिवर सिस्टम बोला जाता है, जो कि सहायक नदियां जो कि फिर मेन नदी को ज्वाइन करें और उसकी हेल्प करके उस नदी में फ्लो को बढ़ाएं. नाउ वी विल रीड द 3 रिवर सिस्टम, द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. Students, you have to read the chapter word to word deeply. I will give you only summary. So let's start the Indus River system. The river Indus rises in Tibet near Lake Mansarovar, flowing west. It enters India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir. It forms a picturesque gorge in this part. Several tributaries, the Jaskar, the Nubra, the Shyok and the Hunja join it in the Kashmir region. अब जो रिवर इंडस है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के में मानसरोवर जो लेक है वहाँ से ये निकलती है और वेस्ट की तरफ ये बहती है, और हमारे भारत में ये जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है. बहुत ही सुंदर ये जॉर्ज बनाती है और इसकी सहायक नदियां हैं जास्कर, निब्रा, श्योक एंड हुंजा, जो कि इससे कश्मीर क्षेत्र से मिल जाती हैं. द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप with a total length of 2,900 kilometers. The Indus is one of the longest river of the world. A little over a third of the Indus basin is located in India in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest is in Pakistan. अब इसकी जो लंबाई है 2,900 किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है, और यह जो रिवर है यह इसका 1/3 पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे भारत में मिलता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, और बाकी का जो इसका बचा हुआ भाग है वो पाकिस्तान में मिलता है. बाकी का बचा हुआ पार्ट पाकिस्तान में है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम. अब हम जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी 1960 में, उसके हिसाब से भारत जो है सिर्फ इंडस रिवर का ओनली 20% वाटर ही यूज़ कर सकता है. दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. Now the Ganga river system. The headwater of the Ganga, called the Bhagirathi, is led by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand at Haridwar. The Ganga emerges from the mountains onto the plains.
अब गंगा जो है, गंगा का जो उदय है वो गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, जहाँ पर उन्हें भागीरथी बोला जाता है। और इसके बाद अलकनंदा में उत्तराखंड में देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ ये ज्वाइन करती हैं। और इसके बाद फिर हरिद्वार से ये प्लेन एरिया में आ जाती हैं, माउंटेन एरिया में वहाँ तक बहती हैं उत्तराखंड तक। उसके बाद फिर वो हरिद्वार से फिर वो प्लेन एरिया में एंटर कर लेती हैं। So students, here is the map given India major rivers. You have to read the map. If you have any doubt, you can ask me in doubt class. But this is very important, so you have to read the map. It is must. यहाँ पर पिक्चर दी गई किस तरह से भागीरथी और अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग में मिलती हैं। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Kosi. The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas. अब गंगा जो है, गंगा की बहुत सी सहायक नदियां हैं जो कि यमुना है, घाघरा है, गंडक है और कोशी हैं। यहाँ पर यमुना जो है वो हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली हैं। द गंगा, द गंडक एंड द कोशी राइज इन द नेपाल हिमालयाज। The main tributaries which come from the peninsular uplands are the चंबल, the बेतवा and the सन। अब कुछ और सहायक नदियां हैं जो कि गंगा से मिलती हैं, वो हैं चंबल है, बेतवा है और सन है। अब आपको ये फाइंड करना है कि ये जो नदियां हैं चंबल, बेतवा और सन, ये अल्टीमेटली कहाँ पर ज्वाइन करती हैं गंगा को। ये एक क्वेश्चन और है आपके लिए। रीड दिस, डू यू नो, यू हैव टू रीड दिस। This is about the flagship program, so you have to read about it. The length of the Ganga is over 2500 किलोमीटर। अब जो गंगा की लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। Now the Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in Tibet east of the Mansarovar lake, very close to the sources of the Indus and the Satluj. It is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India. It flows eastward parallel to the Himalayas. अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकली है, लेकिन वो तिब्बत के मानसरोवर लेक के पूर्व दिशा से निकलती है। और इंडस और सतलज जो है उन दोनों का ही ओरिजिन प्लेस तिब्बत मानसरोवर लेक है, पर ये जो है ये ईस्ट से निकलती है ब्रह्मपुत्र, और जो ब्रह्मपुत्र जो है वो मानसरोवर लेक के ईस्ट से निकलती हैं, और जो इंडस रिवर है वो मानसरोवर लेक के पास से निकलती हैं। और ये नदियां जो हैं मोस्टली जो है इनका कोर्स जो है वो भारत के आउटसाइड से है। इट फ्लोज ईस्टवार्ड पैरेलल टू हिमालय, और ये हिमालय के पैरेलल बहती हैं। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज। अब ये नामचा मानवा तक पहुंचकर फिर ये यू टर्न ले लेती हैं और भारत में एक गॉर्ज बनाती हैं, और वहां अरुणाचल प्रदेश से फिर ये एंटर करती हैं। एक गॉर्ज के थ्रू ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती हैं। यहाँ पर इसको दिहांग बोला जाता है, और ये दिबांग को ज्वाइन करती हैं। द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। अब इसकी बहुत सारी दूसरी ट्रिब्यूटरीज हैं लोहित के साथ साथ, जो कि आसाम में इनसे मिलती हैं। जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट डू यू नो दिए गए हैं ये आप सभी को रीड करने हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जस्ट लाइक दिस, द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्श लैंड। Now children, here is one more question for you. You have to find out the world's largest riverine island formed by the Brahmaputra. You have to find and write in fair copy. यहाँ मैंने कुछ questions आपको बताए, आपको सभी fair copy में लिखना है पीछे की exercise के अलावा। And in the next video we will read about the peninsular rivers. अभी तक हमने हिमालयन रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली and word to word. I will give you only summary.